So once again, good morning, students. Yesterday we have discussed the three states of matter, that is solid, liquid, and a gas. Beta, these states of matter, that is solid, liquid, and gas, are interchangeable. Means we can change these states. Means solid can be changed into liquid, liquid can be changed into gas, and gas can be again changed into liquid or solid. So today we will discuss what are the various methods by which we can change the states of matter. So states of matter can be changed by two methods. Number one is by changing temperature. By changing temperature. And second method क्या है बेटा? This is the first part. And second part क्या है? By changing pressure. Okay. So first of all, today we will see how can we change the state of matter by changing its temperature. Okay. And how do this temperature? Why do this temperature? If you are changing the temperature, why do change in a state takes place? Okay. So come to see this one. Temperature. First of all, you come to know what is temperature. Do you know what is temperature? Temperature is the hotness or coldness of a body. क्या है बेटा? Hotness or coldness of a body is called क्या? Temperature. The SI unit of temperature is SI unit. Temperature का क्या है? Kelvin. Other unit, other common unit of temperature क्या है बेटा? That is degree Celsius. So these two units, SI unit and a common unit of temperature, that is degree Celsius, we are generally using. So what is the relationship between degree Celsius and Kelvin? Here unit can also be changed. So temperature in degree Celsius is equal to क्या होगा? Temperature in degree Celsius is equal to, if Kelvin में दिया हुआ है, then Kelvin minus 273. And if temperature in Kelvin आपको निकालना है, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, then degree Celsius plus 273. Okay. For example, you can take if the temperature of a body, suppose temperature क्या में दिया हुआ है? 25 degree Celsius दिया हुआ है, and suppose they are question is they are change it in the Kelvin. तो in Kelvin क्या हो जाएगा? Kelvin is equal to क्या होता है? Degree Celsius plus 273. So degree Celsius में कितना है? 25 degree Celsius plus 273. इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5, 3, 8 and 7, 2, 9 and 2. 293 98 Kelvin. The temperature कितना हो जाएगा? This is the answer in Kelvin. Okay. Suppose temperature आपको दिया है in the question, temperature is equal to 30K, ना? 330K. 330K आपको दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है बेटा? यहाँ दिख नहीं रहा. 330K दिया हुआ है. And suppose if we have to change this one in degree Celsius, so degree Celsius क्या हो जाएगा? Degree Celsius is equal to 330 minus 273. क्या आएगा? 10 में से 3 जाएगा 7, और ये 2 हो गया. 9 में से 10 तो 12 में से 7 जाएगा 5. 57 डिग्री सेल्सियस. ये आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो we can change the temperature of any degree Celsius can be changed into Kelvin by adding 273, and if the temperature is given in Kelvin and question is there to change in the degree Celsius, then उसमें से क्या करेंगे? 273 माइनस कर देंगे.
now come to the methods of changing of a state of matter. First क्या बताए, we can change the state of matter by changing the temperature. Changing temperature. टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों चेंज हो जाता है? सपोज यू हैव सॉलिड बेटा, हियर इन दिस देयर आई एम शोइंग सॉलिड्स, सो ऑल ऑफ यू नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्ट, so like this particles are completely closely packed. Okay, this is क्या है? solid. In the solid, but as we are giving heat, हमने इसको क्या सप्लाई किया? heat. It is a form of energy. So as we are supplying heat energy, then particles का kinetic energy क्या हो रहा है? This heat क्या कर दिया? increase कर दिया. increases the kinetic energy of the particle. This heat supplied, then one second please. All of you know that particles of solid are closely packed. Particles of solid are fixed in position, and in the fixed position they are vibrating to and fro. But as the heat is provided to the solid, then this heat energy is taken by the particles of the solid, and particles of the solid क्या करने लगेगा? This heat energy increases the kinetic energy of the particles, so the particles start to vibrate more, and as its kinetic energy is increasing, and when the kinetic energy of the substance overcome the force of attraction of the solid particles, then state क्या हो जाएगा बेटा? Change हो जाएगा. Okay, so like this happen. I am writing the steps. क्या होता है? In solids, in solid क्या है बेटा? Particles are closely packed. Particles are closely packed and vibrating on their own position, and vibrating on their own position. एक ही जगह पर रख के क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है. देन इसको क्या सप्लाई किया गया? व्हेन द हीट एनर्जी, इसको क्या सप्लाई किया गया? हीट एनर्जी जैसे ही सप्लाई किया गया, हीट एनर्जी सप्लाई दिया जा रहा है, सपोज फ्रॉम ऑल द हीट इज सप्लाइंग, देन क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो गया? काइनेटिक के मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड क्या कर गया? इंक्रीज करेगा. पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा. एंड व्हेन द काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है. व्हेन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? ओवरकम, ज्यादा हो गया देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओवरकम लिख सकते हैं, ओवरकम force of attraction of particles solid. See, in the solid, particles are closely packed and vibrating on their own position. When the heat energy is supplied to the solids, then due to this heat energy, kinetic energy of the particles of solid increase. And increase करते करते when the kinetic energy जो है particles का overcome the force of attraction of the particles of the solid, then क्या हो जाएगा बेटा? A state change. Then क्या हो गया? A state क्या कर गया? Change. यहीं पर a state क्या हो जाएगा? Change हो जाएगा. A state change. यहाँ लिख सकते हैं a state change हो जाएगा. Means solid to क्या में आ जाएगा? Liquid में आएगा. In the same way,
in the suppose we have liquid have their particles are packed and particles are vibrating on their own position, but again we will provide heat, then again क्या हो जाएगा, उसका particles, liquid के particles का kinetic energy बढ़ेगा और kinetic energy बढ़ने के कारण वो ज्यादा जोर से vibrate करेगा, और जब उसका kinetic energy liquid के particles के बीच में जो force of attraction है उससे ज्यादा हो जाएगा, लिक्विड टू क्या में बदल जाएगा, गैस में आ जाएगा. ठीक है. Opposite can also take place बेटा. Suppose we have gas and we are decreasing the temperature, then उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, एंड डिक्रीज करने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करते 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 जब उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी से, देन गैस टू क्या में आ जाएगा, लिक्विड में, एंड लिक्विड टू क्या में आ जा सकता है, सॉलिड में. सो लाइक दिस, by changing the temperature we can change the state of matter. Okay. See, solid, liquid, gas. This triangle, solid को लिक्विड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर देना पड़ेगा. टेम्परेचर को इंक्रीज किया मीन्स ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा. दिस एरो इज इंडिकेटिंग ना, सपोज लिक्विड टू गैस लाना है, देन अगेन हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ गैस टू लिक्विड अगर लाना है, गैस टू लिक्विड कैन ऑल्सो भी लाया जा सकता है, तो भी यहाँ टेम्परेचर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. लिक्विड टू सॉलिड लाना है तो टेम्परेचर को भी क्या करें, यहाँ भी टेम्परेचर लाएंगे, लेकिन इसको क्या करें. One more method is there beta, by which solids directly can be changed into gas and gas directly can be changed into solid, that is called क्या, sublimation. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग जो भी स्टेप्स है, दैट इज सॉलिड कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड बाय गिविंग द टेम्परेचर. दिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सॉलिड टू लिक्विड में बदलने वाला जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग. मेल्टिंग. ठीक है. अब लिक्विड टू गैस जो बदलने वाला ये जो प्रोसेस है, इसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग. एंड इधर देखो बेटा, गैस टू लिक्विड में जो बदलेंगे टेम्परेचर डाउन करके, इसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन. एंड लिक्विड टू सॉलिड जो आएगा गैस टेम्परेचर डाउन करके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग. फ्रीजिंग. ठीक है. एंड सॉलिड टू गैस डायरेक्टली कैन बी चेंज, इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. Sublimation. So how many definition you have to learn? Melting, boiling, condensation, freezing and sublimation. So what are these process? इसको किसको कहते हैं, melting क्या है, boiling क्या है, ये सारा को वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं. ठीक है. तो come to first of all क्या है बेटा, melting. Melting क्या है, क्या है, मेल्टिंग. सो मेल्टिंग इज द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है, मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग इज द प्रोसेस. प्रोसेस होगा बाय विच सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड. by supply heat. At by supplying heat. This process is called क्या है, melting. And melting point क्या है, MELTING, melting point.
मेल्टिंग पॉइंट ये तो प्रोसेस हो गया, बट मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर है। ये क्या है, टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस जो होगा वो चेंज करेगा लिक्विड में, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो मेल्टिंग इज ए temperature at which solid changes into liquid at atmospheric प्रेशर। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो जिस टेम्परेचर पर जो सॉलिड है वो चेंज करेगा सॉलिड टू लिक्विड में, देन वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल यू कैन टेक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो क्या है, प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। सो 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, एग्जाम्पल हर सब्सटेंस का अलग होगा, अल्कोहल का अलग होगा, ठीक है, हर चीज का अलग अलग होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। सो दिस 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड दिस 0 फॉर द वाटर, दिस 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट, ये ट्रिपल पॉइंट क्या है, ट्रिपल पॉइंट मीन्स at 0 degree Celsius water can exist in the all three states, means it can exist in the solid state also, liquid state also, gaseous state also. Okay, that's why this 0 degree Celsius is called triple point of the water. So now melting over, now after melting they see boiling. Boiling क्या है, again process बॉइलिंग क्या है बेटा, प्रोसेस बाय विच, अभी क्या होगा, लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। gaseous state by applying heat, by applying heat, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बीपी। बॉइलिंग पॉइंट इज द फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच क्या हो जाएगा, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस रैपिडली। सो फिक्स्ड टेम्परेचर एट विच liquid changes into gaseous state, गैस लिख सकते हो, गैस रैपिडली, बहुत तेजी से, रैपिडली एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यार प्रेशर कांस्टेंट है, इफ योर प्रेशर इज कांस्टेंट, तो जिस टेम्परेचर पर वाटर जो है रैपिडली गैस में चेंज होने लगेगा वो क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, बीपी ऑफ वाटर क्या है बेटा, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। So 100 degree Celsius is the boiling point of water. It will be different for all the different materials, like alcohol have 78 degree Celsius boiling point. Now after boiling, condensation and freezing. So condensation में क्या होगा, in कंडेंसेशन क्या होगा, क्या चीज का क्या चेंज होता है, कंडेंसेशन में गैस चेंज करेगा, गैस चेंज करेगा क्या में बेटा, गैस चेंज करेगा लिक्विड में, ठीक है। सो प्रोसेस बाय विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, प्रोसेस
by which gas changes into liquid on cooling वो क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा घर में दूध बॉयल करने के बाद दूध जो बाली के पतीला में क्या है, मिल्क है बेटा, मिल्क बॉयल करने के बाद इसके ऊपर जो प्लेट लगा रहता है, देन यू हैव सीन दैट देयर इज मिल्क, बट इन द जो प्लेट है उस पतीला में क्या, प्लेट में क्या आ जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स। क्यों आ गया? बिकॉज मिल्क इज हॉट, so from the milk water changes into vapor and this lid is cool, so on the cool lid it get condensed, अपना हीट को लूज कर दिया प्लेट में, एंड जो वाटर जो वेपर था वो क्या में आ गया, गैसियस स्टेट में आ गया। so ये क्या हो गया, कंडेंसेशन। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग और फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होगा, लिक्विड टू लिक्विड चेंज कर जाएगा क्या में, सॉलिड में, लिक्विड चेंज करेगा सॉलिड में। सो प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, ये प्रोसेस क्या है, फ्रीजिंग। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको क्या पता है, 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके, नाउ अनदर मेथड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या है, सी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का क्या मतलब है कि यहाँ भी स्टेट चेंज होता है, बट डायरेक्ट सॉलिड कम्स इनटू द गैसियस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। सो प्रोसेस बाय विच या इन विच solids directly changes into solid, directly changes into gaseous state without coming into liquid state। ठीक है, और बहुत सारे सब्सटेंस है जो सॉलिड क्या है, सॉलिड टू डायरेक्टली गैस में आता है। द सब्सटेंस जो डायरेक्टली में आएगा उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, सब्लिमेट। तो जो सब्सटेंस सब्लिमेशन में जाएगा वो क्या है, एग्जाम्पल कैम्फर है बेटा, कपूर जो पूजा करने के समय देखते हो, कैम्फर, नैप्थलीन बॉल जो कपड़ा में डलाता है, उसके बाद तुम्हारा हो गया आयोडीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको कि क्या कहते हैं, ड्राई आइस, इसको ड्राई आइस कहा जाता है, ड्राई आइस। डू यू नो व्हाई? बिकॉज डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में आएगा, इट डजंट कम्स इनटू द लिक्विड स्टेट, इसलिए इसको ड्राई आइस भी कहते हैं। और जब सॉलिड स्टेट होता है तो एकदम आइस के समान ही दिखता है। तो नैप्थलीन, एक और है एंथ्रासाइन, एंथ्रासाइन। तो ये सारे सब्सटेंस जो है वो तुम्हारा क्या जाएगा, सब्लिमेशन जाएगा। ठीक है, तो सब्लिमेशन करने के लिए एक प्रोसेस फोटो भी है जिसमें कि आपको काम्फर का या अमोनियम क्लोराइड में एक बेटा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो अभी हम अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है उसको दिखाते हैं। सो फिगर to show the sublimation of ammonium chloride. Ammonium chloride is a salt which undergoes sublimation. So for that क्या होने चाहिए, एक tripod stand, we need a tripod stand, इस ट्रिपोड स्टैंड के ऊपर क्या रखेंगे, वायर गॉस, ये तार की जाली है बेटा, ये ट्रिपोड स्टैंड है, इसके नीचे में हमने क्या लगाया है, बुंशन बर्नर है, यहां से आगे इसको फ्लेम मिल रहा है,
और इसके ऊपर हमें क्या लेना है, चाइना डिश। इसको हमने लिया, चाइना डिश ले लिया। इस चाइना डिश में हमने डाल दिया क्या, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट वी हैव टेकन। एंड देन यू टेक अ ग्लास फनेल इन्वर्टेड, यहां पर एक फनेल जिसको कीप बोलते हैं हम लोग, कीप लेंगे। कीप को उल्टा करके रख दिए हैं, मतलब इसको ढक दिए हैं अच्छे से। और इसका जो एक कीप है, फनेल है, यहाँ पर हमने इसका जो ओपनिंग है इसमें क्या लगा देंगे, कॉटन बॉल, रुई लगा देंगे। ठीक है, ये गिरे नहीं इसलिए इसको हम एक स्टैंड से कस देंगे। ये स्टैंड है तो ये गिरे नहीं इसलिए इसको हमने क्या कर दिया है, स्टैंड से कस दिया। तो अभी लेवल कर देते हैं। व्हाट इज दिस बेटा, ये क्या है, स्टैंड। ये है आपका स्टैंड। ये क्या है, फनेल। ये क्या यहाँ लगाया है, कॉटन प्लग लगा दिए हैं, कॉटन प्लग किया हुआ है। ये क्या है, चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश। ये क्या है बेटा, वायर गॉस। ये क्या है, ट्रिपोड स्टैंड। ये क्या है, बर्नर। ये क्या है, बर्नर। तो जैसे हीट देंगे देन दिस अमोनियम क्लोराइड को हीट मिलेगा एंड दिस अमोनियम जो क्लोराइड है दिस चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। एंड ऊपर का जो पोर्शन है कीप का, जो फनेल का जो ये स्टेम है, इस स्टेम में और ये जो कोल्डर जो पोर्शन है यू विल फाइंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ये सारी जगह कोल्डर पार्ट ऑफ द फ्लेम में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। So this figure is showing that sublimation of the ammonium chloride. फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है, फिगर sublimation of NH4Cl, ammonium chloride. ठीक है, so like this sublimation process takes place. Okay, now one more thing is there with a latent heat. Do you know what is latent heat? Latent heat ये क्या है, इन हिंदी वी आर कॉलिंग गुप्त उष्मा, छुपा हुआ उष्मा। ठीक है, ये छुपा हुआ उष्मा है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन दैट suppose you are boiling water, suppose you are boiling water there, you have taken water and you are boiling water. Suppose accidentally if you are finger touching the water, you are not getting that much heat. If means burning sensation will be less there, but here your finger is coming in the stem, steam here, stem not a steam, then burning sensation is more. In the same way, suppose you have there ice cubes, ठीक है, एंड इन दैट their temperature is also 0°C एंड यहाँ भी क्या है, वाटर, बट वाटर एट कितना लिया गया है, 0°C, बट हियर आइस क्यूब्स है, दिस विल बी मोर कोल्डर देन वाटर एट द 0°C. In the same way, here water had 100°C and this vapor also have 100°C, but vapor giving more burning sensation than water at 100°C. Do you know why? Because there is the reason is that this vapor has latent heat of vaporization, and here water at 0°C has latent heat of fusion. So first of all, you come to know what is latent heat. लेटेंट का मतलब ही क्या होता है, लेटेंट का मतलब है हिडन, हिडन माने छुपा हुआ। सो द हीट which is used to change the state of matter, उसको क्या कहते हैं, latent heat, without changing the temperature of the substance. So heat which changes the states of matter
without changing the temperature, without changing the temperature of the body या substance, जो भी है of the substance, उसको क्या कहेंगे बेटा? लेटेंट हीट कहते हैं। स्टेट को चेंज कर देगा, मतलब सॉलिड है, आइस जैसे आपने लिया है, तो आइस सपोज हियर क्या लिया है? आइस, तो टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, एंड इफ यू आर चेंजिंग दिस आइस इनटू only water, but temperature should be also 0 degree Celsius. So the amount of heat required to change the state of matter here, solid to क्या में बदल रहा है? लिक्विड में। In the same way, suppose you have taken क्या लिया है? यहाँ water लिए हैं and you are changing into vapor, then the amount of heat जो होगा, यहाँ भी 100 degree Celsius है, here also 100 degree Celsius, but the states get changed, water to vapor. So that heat energy you are supplying here, that is the latent heat. Okay. Now latent heat is of two types. One जो solid to liquid में change करेगा, and another जो है वो क्या है? Liquid to gas में change करेगा. So latent heat कितने प्रकार का हो गया बेटा? It is of two types. Number one is called latent heat of fusion. एंड सेकेंड जो है वो क्या है बेटा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम टू नो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन मीन्स यहाँ क्या से क्या स्टेट चेंज होगा? सॉलिड टू, यहाँ स्टेट क्या चेंज होने जा रहा है बेटा? सॉलिड चेंज करेगा क्या में? लिक्विड में चेंज करेगा, बट टेम्परेचर विल बी सेम हियर. जितना टेम्परेचर यहाँ है उसका भी, लिक्विड का भी टेम्परेचर वही होगा. दैट इसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. सो राइट, द डेफिनेशन क्या होगा बेटा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट which changes the solid into liquid without changing its temperature. Without changing its temperature. इसका टेम्परेचर नहीं होगा, ओनली सॉलिड टू क्या में बदल जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा. ठीक है. By the calculations, experiments, it was found, suppose here you have taken 1 kg ice, कितना डिग्री पर? At 0 degree Celsius. 0 degree Celsius पर 1 kg ice है, and if you want to change into 1 kg वाटर, पूरे आइस को वाटर में बदलने के लिए एट 0 डिग्री सेल्सियस ओनली वी नीड, यहाँ क्या देना पड़ेगा? लेटेंट हीट ऑफ, क्या देना पड़ेगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. एंड द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कितना है बेटा? वो है 3.35 into 10 to the power 5 किलो जूल पर केजी, क्योंकि 1 kg है ना. तो यहाँ पर हम लोग पर केजी लगा दिए ऑलरेडी. यहाँ पर हमको कितना हीट देना पड़ेगा? 3.35 into 10 to the power 5 किलो जूल देंगे. तो 1 किलो जो आइस है 0 डिग्री पर, वो 1 किलो वाटर में बदल देगा. सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज दिस मच. By the experiment it was found this is the value. But for other substances, अगर आपके पास अल्कोहल है या कोई भी बेंजीन है, अलग अलग सब्सटेंस के लिए एक क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा. ठीक है.
And from here 2-3 questions are very important beta, like what do you mean by suppose latent heat of fusion of ice is 3.35 into 10 to the power 5 kilojoule per kg. What do you mean by this statement? तो इसका मतलब क्या हो गया? It means to convert 1 kg ice at 0 degree Celsius into 1 kg water at 0 degree Celsius, 3.35 into 10 to the power 5 kilojoule heat is required. Okay. Another question is there. Suppose why do ice at 0 degree Celsius is more effective in cooling than water at 0 degree Celsius? तो ice के पास क्या होगा? इतना heat energy क्या होगा? कम होगा. So ice has 3.35 into 10 to the power 5 kilojoule per kg less heat energy than water at 0 degree Celsius. So ice जो है वो ज्यादा better effective है in the cooling में. ठीक है. तो उसी तरह से अभी हम लोग क्या पढ़ लेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया. अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को क्या में चेंज करना पड़ेगा? यहाँ लिक्विड होगा टू गैस में बदला जाएगा. सो टेम्परेचर विल बी सेम हियर, सेम टेम्परेचर दोनों का होगा. सो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट या हीट एनर्जी विच चेंजेस द लिक्विड, यहाँ क्या लिखेंगे? लिक्विड into gas without changing its temperature. यहाँ 1 kg आइस के जगह हम लोग क्या ले रहे हैं? 1 kg वाटर. और टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा? 1 kg वाटर हमने बॉइलिंग पॉइंट पर लिया है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस. एंड हमें चेंज करना है इसको 1 kg क्या में? वेपर में, स्टीम. देन इसका टेम्परेचर भी कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस ही है. तो यहाँ हमको देना 22.4 इंटू 10 टू द पावर 5 किलो जूल देना पड़ेगा. इट मीन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्या है? 22.4 इंटू 10 टू द पावर 5 किलो जूल पर केजी. And here this question is also a steam give severe burn than water at 100 degree Celsius. अगर थर्मामीटर लगा के बता रहे हैं वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री बताएगा बेटा, स्टीम का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस बताएगा, बट स्टीम गिव सीवियर बर्न. हम लोग जब रोटी बनाते हैं ना, जब रोटी निकालते समय बाई चांस फिंगर रोटी के अंदर चला जाता है, देन वी गेट वेरी सीवियर बर्न. डू यू नो? बिकॉज a steam has 22.4 into 10 to the power 5 kilojoule per kg more heat energy than that of the water